Good morning, student. How are you all? Now, yesterday we had been reading arguments in favor of democracy as well as arguments against democracy. Against democracy, we had read completely, and we had already started arguments in favor of democracy, and we had read two features of it. The first one was a democratic government is better government because it is more accountable form of government. वो जनता के हितों के लिए काम करने के लिए बाध्य सरकार होती है, इसलिए वो सबसे सही है. एंड सेकेंड वॉज डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी की वजह से जो निर्णय लिए जाते हैं वो सही निर्णय होते हैं. Now today we'll be starting the third feature of favor of democracy. This is related to the third argument. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Democracy जो अंतर्द्वंद्व है या जो भेदभाव है उसको मिटाने की कोशिश करती है. In any society, people are bound to have differences of opinions and interest. These differences are particularly sharp to a country like ours, which has an amazing social diversity. हमारे जैसे देश के अंदर जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, रंग, जाति, भेद या आपका कल्चर है, भाषाएं हैं, हम लोग बहुत विभिन्नताओं के साथ में जीते हैं. लेकिन यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इसलिए ज़्यादा लंबे नहीं खिंचते हैं क्योंकि यहाँ की सरकार एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ government. These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practice different religions, and have different castes. They look at the world very differently and have different preferences. भारत जैसे देशों में जहाँ पर बहुत सारी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, कल्चर्स हैं, इलाके हैं, लोग-बाग हैं और विभिन्नताएं बहुत सारी हैं, ऐसे देश के अंदर गड़बड़ियां होना संभव है, डिस्कशंस होने संभव हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने संभव हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए हम इन सारे डिस्कशंस से ऊपर उठ पाते हैं. The preference of one group can clash with those of other groups. The conflict can be solved by brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its terms and other will have to accept this. अब जब बहुत बड़ा देश होता है या बहुत अलग अलग विभिन्नताओं वाले लोग होते हैं तो मतभेद होना संभव है. अब मतभेद तभी उसमें सुझाव हो सकता है, सुलझाव तभी आ सकता है जब उनके अंदर जो अंतर्द्वंद होता है या उसको कोई सही ढंग से बिठाकर उन्हें समझा दे या फिर जो पावरफुल है वो जीत जाए. बट दैट वुड लीड टू रिजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस. यदि इस तरह से मतभेद सुलझते हैं तो क्या होता है, लोगों के अंदर खुशियां नहीं रहती हैं, लोगों में आपस में मनमुटाव आ जाते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स में लीड to resentment and they may not be able to live together for long in such a way. लोग बाग लंबे समय तक खुशी के साथ में रह सकते हैं, लेकिन जब वो अंदर से ही खुश नहीं होंगे तो वो बहुत लंबे समय तक एक साथ में एक जगह नहीं रह पाएंगे. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is permanent winner, no one is permanent loser. Different groups can live with one another peacefully. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. लेकिन डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी लोगों को सही तरह से सोचने की क्षमता देती है. कोई भी परमानेंट नेता नहीं हो सकता है और कोई भी परमानेंटली हारता नहीं है. ना कोई परमानेंटली जीतेगा, ना कोई परमानेंटली हारेगा. हमेशा परिवर्तन आएगा और ऐसी स्थिति के अंदर जनता के हितों के लिए काम होते रहते हैं. These three arguments were about the effects of democracy on quality of government and social life. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. डेमोक्रेसी क्या है ये तो ये बताते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी सरकार को क्या करती है ये अभी तक हमने नहीं. It is about what democracy does to citizens. Even if democracy does not bring about better decisions and accountable government,
it is still better than any other form of government. हो सकता है कि डेमोक्रेसी के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया हो गई, नेता चुन लिया गया, वो अच्छा नेता है या नहीं है ये दूसरी बात है, लेकिन डेमोक्रेसी उस नेता को पाबंद करती है कि वो जनता के हित के लिए काम करे। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, जनता के अधिकारों की वो रक्षा करती है। As we have discussed above, democracy is based on principle of political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich, and the educated people are not subject of ruler. They are the rulers themselves. Even when they make mistakes, they are responsible for their conduct. डेमोक्रेसी में कोई नेता परमानेंट नहीं बन के रहेगा और कोई गरीब परमानेंटली नहीं रह सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि गलतियां करते हैं तो गलतियों को सुधारने का भी काम उन्हीं का। फाइनली, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। इसलिए डेमोक्रेसी यही है कि वो सरकार को अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का मौका दे। As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. No form of government can guarantee that. ऐसा अभी तक नहीं हो सकता है कि डेमोक्रेसी किसी भी सरकार के अंदर किसी गलती को होने ही नहीं दे, गलतियां होंगी। The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for law. डेमोक्रेसी का सिर्फ एक ही फायदा है कि यदि कोई इस तरह की गलती हो जाती है तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। There is a space for public discussions on these mistakes and there is a room for corrections. हमेशा डेमोक्रेसी है तो हमेशा गलतियों पर पर्दा नहीं डाला जाएगा, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की जाएगी। Either the rulers have to change the decisions or the rulers can be changed. या तो नेताओं को अपने निर्णयों को बदलना होगा या फिर नेता ही बदल दिए जाएंगे। This cannot happen in non-democratic government. ये चीजें non-democratic government में नहीं होगी। Okay. Now up till now we have read what is democratic government and what are arguments in favor of democratic government and what are against it. Now next topic will be broader meanings of democracy. डेमोक्रेसी को विस्तार से हम किस तरह से देखेंगे। In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited or descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. अभी तक हमने जो परिभाषा पढ़ी, उस परिभाषा के बाद हम यही कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ये बताती है कि सरकार के अंदर किस तरह के कामों को किया जाना चाहिए और किस तरह से गलत निर्णय सरकार नहीं ले सकती। The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. Representative democracy मतलब जो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से हम नेता को चुनते हैं वो representative democracy होती है। और डेमोक्रेसी यही कहती है कि इसी तरह से चुनी गई सरकार ही सही तरह से काम करती है। A majority is allowed to take decision on behalf of the people. Even the majority does not rule directly. बहुत सारे लोग निर्णय लेने के लिए काम करते हैं, हालांकि वो सब सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन वो सरकार के साथ मिलके निर्णय लेते हैं। Majority of people rule through their elected representatives. This becomes necessary because बहुत सारे जो लोग हैं वो देश को चलाने के लिए काम करते हैं, और वो किस तरह से देश को चलाते हैं? अपने द्वारा चुने गए नेताओं के माध्यम से। Modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decisions. जो आज की आधुनिक डेमोक्रेसी उसमें बहुत सारी संख्या में लोग निर्णय लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे ही लोग एक समय पर एक स्थान पर बैठकर निर्णय ले पाएं। Even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skill to take part in all decisions.
यदि वो एक जगह बैठ भी सकते तो हर एक नागरिक के हित के बारे में निर्णय लेने का अधिकार या उतनी बुद्धि उन लोगों के अंदर नहीं है। दिस गिव्स अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की जो भी परिभाषा है वो बहुत संकीर्ण परिभाषा है। This clarity helps us to distinguish democracies from non-democracies. इन्हीं के माध्यम से हम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अंतर कर पाते हैं। But it does not allow us to distinguish between a democracy and a non-democracy. अच्छी डेमोक्रेसी और बुरी डेमोक्रेसी में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। It does not allow us to see the operation of democracy beyond government. For this, we need to turn to the broader meaning of democracy. यदि हमें डेमोक्रेसी को सही ढंग से समझना होगा तो डेमोक्रेसी का पूर्ण रूपेण अर्थ हमें समझना होगा। Sometimes we use democracy for organization other than the government. कभी कभी हम लोग सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब क्या लेते हैं? एक संस्था है। These ways of using democracy go back to basic sense of a method of taking decisions. ऐसी तरह से जब हम एक संस्था के रूप में डेमोक्रेसी को मान ले तो हम डेमोक्रेसी का सही अर्थ नहीं ले पाते हैं। A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by the decisions. निर्णय लेने वाला और जिसके लिए निर्णय लिया जा रहा है दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है। Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful. नेता और प्रजा दोनों ही बराबर हैं। This can apply to the government or a family or any other organization. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. एक परिवार, एक संस्था, सब एक डेमोक्रेसी है। यदि सही ढंग से काम करे तो वो अच्छी डेमोक्रेसी बन जाती है। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set an ideal standard that all democracies must aim. हम लोग जब डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो वो यही बात करते हैं कि डेमोक्रेसी किस तरह से करनी चाहिए या क्या है। तो वो क्या है? True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. सही डेमोक्रेसी देश में तभी आती है जब उस देश का हर एक नागरिक रात को सोने से पहले उसका पेट भरा हो, कोई भी भूखा ना सोए। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक को सही ढंग से निर्णय लेने का अधिकार। If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. यदि हम इसी चीज को देखें तो फिर हम यही कहेंगे कि पूरे संसार में कोई भी देश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weaknesses. It helps us to distinguish between a minimum democracy and a good democracy. यदि हम बात करें, अगर इसी तरह से बातें करते रहते हैं या इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में देते हैं कि कोई भी रात को भूखा ना सोए, कोई भी व्यक्ति सही गलत के बारे में बात ना करे, तो वो देश एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नहीं है हम नहीं कह पाएंगे। This also means that no country is a perfect democracy. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only minimum conditions of a democracy. ये भी कहा जा सकता है कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो ये नहीं बताता है कि डेमोक्रेसी क्या है या क्या नहीं है, क्या होनी चाहिए। हम सिर्फ इस चैप्टर के माध्यम से यही कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के लिए या डेमोक्रेसी होने के लिए मिनिमम किन चीज़ों की जरूरत हो सकती है। That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decision making. हर एक डेमोक्रेसी यही कहती है कि वो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग रखे, मतलब सबके हितों को ध्यान में रखकर निर्णय ले।
This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democratic forms of decision making. एक बार में ही ये सब चीजें संभव नहीं होंगी। ऐसा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। This is the strength and the weakness of a democracy. Fate of a country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we as citizens do. सिर्फ सरकार ही डेमोक्रेसी नहीं लाती है, देश को सही तरह से नहीं चलाती है। हम नागरिकों का भी ये अधिकार है या हम नागरिकों की भी ये ड्यूटी है कि हम देश के हित के लिए काम करें। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। यही वो एक पॉइंट है जो डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अलग करती है। जब जनता सरकार के साथ मिलकर देश को चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए काम करती है, तो वो सरकार अपने आप ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती है। Other forms of government like monarchy, dictatorship or one party rule do not require all citizens to take part in politics. जहाँ राजा का साम्राज्य हो या एक ही पार्टी हमेशा चुनाव जीतती रहे या तानाशाही हो, ऐसी स्थिति में जनता के हितों के बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता। In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics. Non-democratic government जनता को निर्णय लेने के लिए भागीदार नहीं बनाते। But democracy depends on active political participation by all the citizens. डेमोक्रेसी ही एक वो चीज है जो गलत निर्णय को सही करने के लिए जनता को अधिकार देती है कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा वो अपने नेता को बदल पाए। That is why a study of democracy must focus on democratic politics. इसीलिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को ज़्यादा ध्यान में रखा जाना चाहिए। Now, up till now, whatever we have read, this shows us one thing, that whether a government is democratic or non-democratic, एक सरकार डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, ये सिर्फ जनता पर निर्भर करता है। यदि किसी देश के अंदर एक तानाशाह रूल करे, एक राजा रूल करे या सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती रहे, तो ऐसी स्थिति में वो जनता के हितों के बारे में ध्यान नहीं देगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होती है जो जनता के हितों को और देश के हितों के बारे में ध्यान रखकर निर्णय ले और देश के काम को सुचारू रूप से चलाए। Now here we end chapter number 1, what is democracy and why democracy.